معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 9۔ کیوں بیٹی، کیا تم قید خانہ دیکھنے نہیں جاؤ گی؟ نہیں ابو، اگر وہ جانوروں کا تماشا ہوتا تب بھی میں شاید نہ دیکھ سکتی، اور اس وقت جب کہ وہ انسان ہیں، شیرانہ نے جواب دیا۔ خازال نے حیرت سے بیٹی کی بات سنی۔ اپنی عمر سے بڑی بات کر رہی تھی، تاہم اس نے کہا، کیا وہ انسان جانوروں سے بدتر نہیں ہوتے بیٹے، جو بھیانک جرائم کر کے دوسروں کی زندگی سے کھیلیں؟ یقیناً ہوتے ہیں بابا، لیکن ان کے اندر تحریک جرم پیدا کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ہر جرم کا کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ انسان تو خطاؤں کا ڈھیر ہے۔ ایک خطا ہو جائے تو وہ اصلاح کا ضرورت مند ہوتا ہے، نہ کہ سزا کا، اور اگر سزا اتنی ہو کہ اصلاح قبول کرا دے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ درندگی بن جاتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے فراحہ؟ کس نے اسے یہ سب کچھ سکھایا ہے؟ خازال نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ مجھے خود حیرت ہے، بیوی نے پریشانی سے کہا۔ خازال بیٹی کو گھورتا رہا، پھر پریشانی سے بولا، تمہیں کس نے یہ سب بتایا ہے؟ میں بتاؤں بابا؟ شہزال جلدی سے بول پڑا اور سب کی نگاہیں اس کی طرف گھوم گئی۔ بتاؤ، خازال بھاری آواز میں بولا۔ ہمارے معلم سوزبانہ نے، وہ اسی قسم کی باتیں مجھ سے بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ان کی داڑھی دیکھتا رہتا ہوں، جو ایسے عجیب انداز سے ہلتی ہے کہ مجھے ان کے جانے کے بعد بھی بہت ہنسی آتی ہے۔ شہزال نے ہنستے ہوئے کہا، اور خازال کی بھوؤں میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، تم نہیں جانتی فراحہ، تم نہیں سمجھتی، ان الفاظ سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ یہ الفاظ سرکشی کے حامل ہیں۔ اوہ سوزبانہ، تو میرے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے؟ فکر نہ کر، بہت جلد وقت کی آنکھیں تجھے یہاں گارجیا کے قید خانے میں دیکھیں گی۔ یہاں سے واپسی کے بعد تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا فراحہ کہ سوزبانہ کی آمد و رفت بند کر دو۔ میں حاتم کو لکھوں گا کہ وہ بچوں کے لیے کسی دوسرے عالم کا بندوبست کرے۔ میں ایسا ہی کروں گی خازال، تم بے فکر رہو، میں اس فاسق کو اب کبھی گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گی، خازال کی بیوی نے کہا، اور کڑی نگاہوں سے شیرانہ کو گھورنے لگی، جو سکون سے گردن جھکائے بیٹھی تھی، جسے نیکی اور انسانیت کا درس اس کے خون کے ذرے ذرے میں بس گیا ہو اور اب اسے کسی معلم کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرے دن خازال نے دونوں بچوں کو قید خانے کے نائب کے حوالے کر دیا کہ وہ انہیں قید خانے کی سیر کرا دے۔ اس نے شہزال کے لیے کچھ تماشوں کی فرمائش بھی کر دی تھی تاکہ بچہ خوش ہو سکے۔ چنانچہ شہزال اور شبالہ نائب کے ساتھ چل پڑے، جس کی آنکھوں میں شبالہ کو دیکھ کر مستی ابھر آئی تھی، لیکن شبالہ کی جوانی کے اصول کے تصور سے ہی ہڈیوں نے چٹکنا شروع کر دیا تھا، اس لیے یہ مستی برقرار نہ رہ سکی اور اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ گارجیا کے رہنے والوں کی نگاہیں عورت کے لیے ترستی تھی۔ اگر شبالہ خازال کی بیٹی نہ ہوتی تو اس علاقے کی ہوا ہی اس کے بدن کو پاش پاش کر دیتی۔ اگر کوئی بھولی بھٹکی عورت ادھر نکل آتی تو ان وحشیوں میں چند سائز سے زیادہ نہ رہتی، لیکن شبالہ کی بات کچھ اور تھی، اور وہ ایک قاہر کی بیٹی تھی۔ دیکھنے والوں نے اسے دور سے دیکھ کر آہیں بھری تھی۔ ان کی زندگی میں سے بیزاری قید بھی تھے اور ان کے محافظ بھی۔ قید کے خانے کے عظیم احاطے میں قیدی مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ بہت سی گردنیں اٹھیں۔ انہوں نے شبالہ کو دیکھا، جب تک وہ دور ہی سے دیکھتے رہے، قریب پہنچی تو سہم کر اپنے کام میں لگ گئے۔ نائب سب کی نگرانی کر رہا تھا۔ کیا ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اچانک شہزال نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کس کی مجال ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نازیبہ سلوک کرے، نائب نے اعتماد سے کہا۔ تب آپ آرام کریں، ہم پورے قید خانے کی سیر کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نائب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شبالہ کا قرب اسے بے چین کر رہا تھا۔ زندگی بچانے کا بہتر طریقہ یہی تھا کہ اس کے پاس سے ہٹ جائے۔ آؤ شبالہ، شہزال نے کہا اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔
चंद सायद के बाद वो एक बूढ़े और कवि हैकल कैदी के पास पहुंच गए। क्या कर रहे हैं बाबा? शहजाल ने कैदी को मुखातब किया और कैदी चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। फिर उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, जिंदगी की कड़ियाँ समेट रहा हूँ बच्चे, ये हैं कि टूट टूट कर बिखरी जा रही हैं। इंसानी ज़िंदगी से किस कदर प्यार करता है तुम जानते हो ज़िंदगी क्या है? नहीं, शहजाद ने शरारत से गर्दन हिला दी। ये देखो, ये तुम्हें दिखाता हूँ। बूढ़े ने कमीज़ उतार दी और उसकी पुश्त पर खाल उधड़ी हुई नज़र आ रही थी जिससे खून रस रहा था। ये कौड़ों के निशान थे। ये ज़िंदगी है। ये तो ज़ख्म है बाबा, शहजाद ने बूढ़े के मजाक पर हंसते हुए कहा। तो ज़िंदगी और क्या चीज़ है मेरे बच्चे? गो तुम खाजाल की औलाद हो, लेकिन मेरी दुआ है कि देवता तुम्हें उसकी ज़िंदगी से दूर रखें। और शहबाला ने घबराए हुए अंदाज में कहा और शहजाल का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। उस बूढ़े की बातें दिलचस्प थी शहबाला, तुमने मुझे उससे और बातें नहीं करने दी, मुझे उन बातों से उलझन होती है, शहबाला ने कहा। तो फिर यहाँ और क्या देखने आई हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमूंगा शहबाला, तुम मुझसे अलग होकर सैर करो। शहजाद ने उसे हाथ छुड़ा लिया और हंसता हुआ एक तरफ भाग गया। शहबाला तन्हा खड़ी रह गई, लेकिन मुहाफ़िज़ चौकस था और उसे यहाँ कोई खतरा नहीं था। और फिर किसकी मजाल है जो उसे टेढ़ी आंख से देखे? वो कंधे झटकर आगे बढ़ गई। तन्हा थी इसलिए कैदी उसे निगाहें उठा उठा कर देख रहे थे, लेकिन उसे उनकी निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। वो कैदियों के दरमियान से गुजरती रही और उसके जिस्म की कंवारी खुशबू कैदियों के दिलों में हलचल पैदा करती रही। इस वक्त वो एक बैरक के नज़दीक से गुजर रही थी कि उसने कैदी को देखा जो ज़मीन खोद कर क्यारियाँ बना रहा था। लंबे कद और तवाना जिस्म के मालिक उस कैदी का रंग सांवला था, खदो खाल भी बदे थे, लेकिन वो भरपूर जवान था और उसके सर के बाल बेहद खूबसूरत थे। उसने भी अभी तक निगाह उठाकर शहबाला को नहीं देखा था। क्या उसे मेरे आने की खबर नहीं है? शहबाला ने दिल में सोचा, यकीनन यही बात होगी, वरना ये गर्दन उठाकर ज़रूर देखता और उसकी आंखों में भी वही कैफियत पैदा हो जाती जो दूसरों की आंखों में है। और शहबाला को ये कैफियत पसंद थी, ये उसकी ज़ाती तलब थी। और किस वक़्त से पैदा हुई थी उसके शहबाला को एहसास नहीं था, बस उसने महसूस किया था कि उसके जिस्म की तब्दीलियाँ बेहद हसीन हैं। उसका तजदिया उसने गुस्लखानों के आईनों में किया, फिर लिबास तब्दील करने वाले कमरे में किया था और उसके बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि आंखें उसे देखें और उनमें उसके लिए तहसीन उभर आए। ये कैसा जज्बा था और ये कैसी चाह थी कि उसके बारे में उसने कभी गौर नहीं किया था। हाँ, उस जज्बे को उसने दिल की गहराइयों में पोशीदा रखा था, उसे किसी पर अया ना होने दिया था। हर जगह हर महफिल में उसके जज्बे की तस्कीन हो जाती थी। वो ऐसी ही हसीन थी कि कहीं उसे मायूसी नहीं हुई थी। लेकिन ये कैसा बेखबर इंसान है, उसने अभी तक उसकी मौजूदगी को नहीं महसूस किया। हालांकि वो जिधर से गुजरती है हवाएं उसकी आमद की इतला फैला देती हैं। फिर क्या ये दीवाना हवा की आवाज़ नहीं सुन सकता? उसने रफ्तार सुस्त कर दी। शायद कैदी ने उसके कदमों की आहट सुन ली थी, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं हुई तो उसका जहन झंझला गया, वो रुक गई। और फिर भी जब कुछ ना हुआ तो वो आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गई और उसने कैदी को मुखातब किया और कैदी के हाथ रुक गए। उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाई, उसे देखता रहा और फिर अपने काम में मशगूल हो गया। ये अनोखी बात थी। ये बेइतनाई निगाहों की यह सपाट कैफियत शहबाला के लिए अजनबी थी। उसके जहन में चिंगारियां भर गई। क्या तुम सुन नहीं सकते? वो गुर्राई और कैदी ने फिर उसी अंदाज में उसे देखा। सुन सकता हूँ, उसकी गूंजदार आवाज़ उभरी। क्या कहना चाहती हो? कैदी ने संजीदगी से कहा और उसकी गहरी स्याह आंखों में अजीब सा ठहराव था। तुम बेहद बदतमीज़ हो, वो पैर पटक कर बोली। मुमकिन है वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट भी अजीब थी। मैं तुम्हारे बदन से खाल उतरवा दूंगी, खाजाल की बेटी होना, उसने हकारत से कहा। तुम देखोगे मैं तुम्हारा क्या हशर कराती हूँ, तुम देखोगे, शहबाला ने कहा और फिर तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराता रहा और फिर उसके मुंह से एक गहरी सांस निकली। हसीन लड़की, मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ। मैंने अपनी हर आरज़ू की एक कब्र बना दी है और अब मैं किसी कब्र पर फूल चढ़ाने भी नहीं जाता।
मेरा इनसे क्या वास्ता। मैंने ज़िंदगी में एक आरज़ू की थी, देवताओं से दुआ मांगी थी कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू पूरी करने में मेरी मदद करें। उसके बाद कोई आरज़ू नहीं करूँगा। उसके बाद ज़िंदगी से हर रिश्ता तोड़ दूँगा। सो देवताओं ने मेरी मदद की। मैंने जो दाल के आखिरी फ़र्द को भी मौत के घाट उतार दिया, और जब मैं आखिरी आदमी को कत्ल कर दिया तो मैंने देवताओं का शुक्र अदा किया। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने वादे पर कारबंद रहूँगा। अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। दीवानी, तुझे क्या मालूम कि अगर मैं चाहता तो कुछ और लोग खून में नहाए गर्दनों से महरूम नजर आते, लेकिन उन लोगों से मेरा कोई बैर नहीं था। मुझ पर तो सिर्फ जो दाल और उसके अहले ख़ानदान का खून हलाल था, और देवता गवाह हैं कि उसके बाद मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं देवताओं से बदअहदी कैसे कर सकता हूँ? मुमकिन है कि तेरा हुस्न मेरे दिलो दिमाग में कोई चिराग रोशन कर दे। मैं अब इस वीराने को मुनव्वर नहीं करना चाहता। मुझे माफ़ कर दे खाजाल की बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कैद किया है। मैंने बड़ी मेहनत से अपनी फितरत के गिर्द मजबूत जाल बुने हैं। मैं इस वक्त भी खामोश रहा हूँ जब बेगुनाहों पर मजालम होते हैं। मैं इंसानों के साथ कुत्तों जैसे सलूक पर भी खामोश रहा हूँ। अगर तुझे देखकर मेरे दिल में कोई तहरीक पैदा हो गई तो देवता मेरी आज तक की खामोशी का हिसाब मांगेंगे। वो मुझसे पूछेंगे कि अगर तेरे दिल में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी थी तो ये चिराग उस वक़्त रोशन क्यों ना हुआ जब किसी मज़लूम की चीखें तेरे कानों में गूंजी थी। मैंने ऐसी हज़ारों चीखें अपने सीने में दफन कर ली हैं। मेरे दिल में अब कोई आरज़ू नहीं जाग सकती। शिकस्त पंदारे हुस्न पर मुझे माफ़ कर दे हसीना, मुझे माफ़ कर दे। वो बड़बड़ाता रहा और फिर खामोश हो गया। उसके मजबूत हाथ दोबारा क्यारियाँ खोदने लगे, लेकिन शबाला के दिल में आग रोशन थी। उसके सीने में भट्टी सुलग रही थी। वो निचला होंठ चबाए डाल रही थी और सस्यारो की ये मजाल के, लेकिन उससे आगे अल्फाज न थे। वो सिर्फ इंतकाम चाहती थी। वो उसे रोते गड़गड़ाते देखना चाहती थी और उसके दिल में नफ़रत का लावा खोल रहा था। नफ़रत, सिर्फ नफ़रत। तब वो शहजाल को तलाश करती हुई उसके नज़दीक पहुंच गई। क्या तुम वापस नहीं चलोगे? वो गुर्राई हुई आवाज़ में बोली। अभी तो मैंने उनसे सिर्फ मुलाकात की है। अभी तो मैंने कोई तमाशा भी नहीं देखा। तमाशा? वो फुंकारी। तमाशा कल देखना शहजाल। मैं वादा करती हूँ, मैं कल तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी। तुम्हारी मर्जी शबाला, चलो चलें। शहजाल ने रजामंदी का इजहार किया। रात के खाने पर खाजाल मौजूद था। अनवाओ इकसाम की नेमतें दस्तरख्वान पर मौजूद थीं। खाजाल अपने बच्चों के साथ बहुत खुश नज़र आ रहा था, लेकिन शबाला की हसीन पेशानी पर तकद्दुर की शिकनें मौजूद थी और उन्हें साफ देखा जा सकता था। खाजाल की निगाहें उस पर पड़ीं तो वह चौंक पड़ा। उसने खाने से ओत हाथ रोक लिया और बेटी को देखते हुए बोला, क्या बात है शबाला, तुम्हारी पेशानी तकद्दर से दागदार देख रहा हूँ। हाँ बाबा, मुझे आपके बुढ़ापे का एहसास हो रहा है। शबाला ने कहा। मेरा बुढ़ापा? क्या मतलब? खाजाल हैरत से बोला। एक दिन था जब आप जवान थे तो गार्जिया के कैद खाने की कहानियाँ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर थी। लोग गार्जिया के नाम से कांप जाते थे, लेकिन जूं आप बूढ़े होते जा रहे हैं ये कहानियाँ दम तोड़ती जा रही हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच रही है कि अब गार्जिया के कैदी आपका नाम हकारत से लेते हैं। खाजाल ने अचानक खाना छोड़कर अपना खंजर निकाल लिया। उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार थे। उसकी आंखें खून उगलने लगी थीं और फिर उसने खंजर सामने रखे हुए गोश्त के बड़े से टुकड़े में गाड़ दिया। फिर उसकी सर्द आवाज़ उभरी। इस कसम का मतलब समझती हो? कसम? शबाला ने उसे तअज्जुब से देखा। हाँ, ये एक कसम है। ग़िज़ा का एक ज़र्रा मेरे ऊपर उस वक़्त तक हराम है जब तक मैं उससे इंतकाम न ले लूँ जिसने मेरा नाम हकारत से लिया है। तब तो मुझसे भूल हुई बाबा, शबाला ने नदामत से कहा। तुमसे भूल नहीं हुई शबाला। अगर रात के दस्तरख्वान पर तुम उस शख्स का सर किसी बर्तन में सजा कर रख देती तो मैं तुम्हारी सादतमंदी पर नाज करता जिसने मेरी तौहीन की है। तुमसे ये भूल हुई है कि तुमने उस नामराद को ज़िंदगी के चंद लम्हात बख्श दिए। खाजाल ने गड़गड़ाते बादलों जैसी आवाज़ में कहा। मेरे नज़दीक ये सज़ा नहीं है बाबा। क्या कहना चाहती हो? खाजाल ने कहा। दस्तरख्वान पर सब के हाथ रुक चुके थे।
सब परेशानी से बाप बेटी को देख रहे थे। ख़ास तौर पर शेराना की निगाहों में तो नफ़रत उभर आई थी। उसे बहन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे ज़िंदा रहने दिया जाए, थोड़ी सी सज़ा दी जाए, लेकिन ये सज़ा उसके लिए मुस्तकिल कर दी जाए ताकि वो ज़िंदगी भर अपनी इस हरकत पर पेशमान होता रहे। अगर उसे निजात मिल गई तो ये सौदा उसे क्या महंगा पड़ेगा, शबाला ने कहा। खाजाल गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर उसने भारी आवाज़ में कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तजवीज़ मंजूर है। मुझे बताओ कि वो कौन है और उसने क्या किया है। आप वादा कर चुके हैं बाबा कि आप उसके साथ वही सलूक करेंगे जो मैंने कहा है। हाँ, वो ज़िंदगी भर अजाब में गिरफ्तार रहेगा, खाजाल ने कहा, और शबाला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मगरूर इंसान उसकी तौहीन करके खूब सज़ा भुगतेगा। मुझे उसका नाम पता बता शबाला, खाजाल ने इसरार किया। मैं उसका नाम तो नहीं जानती बाबा, जल्दी बता, वो कौन था, कहाँ मिला था। स्याह और भद्दे नकूश वाला तवील कामत और मजबूत बदन का मालिक वो कैदियों की बैरक के पीछे कियारियाँ खोद रहा था, और उसके सर पर घुंघराले खूबसूरत बाल हैं और उसकी आंखें अजीब हैं। ज़ुलारा, देवताओं की कसम, ये तो तूने ज़ुलारा का हुलिया बताया है। कोई भी हो, मगर उसी की बात कर रही हूँ। ओहो, मगर वो तो गार्जिया के कैद खाने का सबसे मुहज्जब, सबसे नेक कैदी है। उसकी पुश्त आज तक साफ सुथरी है, क्योंकि उसने किसी मुहाफ़िज़ तक को शिकायत का मौका नहीं दिया। आप उसकी मदासराई करते रहेंगे बाबा, आपके साथ शरीक नहीं होंगी, शबाला ने तंग कर कहा। मैं उसकी मदासराई नहीं कर रहा शबाला, वो बड़ा खौफनाक इंसान है। तुम जानती हो वो कौन है? जानना भी नहीं चाहती, शबाला ने नफरत से कहा। नहीं, तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। वो एक दिलचस्प शख्सियत है। मुमकिन है कि तुम्हें ज़ुलारा का नाम याद ना रहा हो, लेकिन उसके तारफ़ के लिए रियासत की बाजगुजार रियासत खजाना का नाम ज़रूर लिया जाएगा, जिस पर जोदाल हुक्मरानी करता था। ज़ुलारा खजाना का रहने वाला था, और जोदाल अपनी रिया के लिए सख्त ज़ालिम था। जोदाल हवस परस्त भी था, और ये सोमालिया की बदकिस्मती थी कि एक बार जोदाल की निगाहों में आ गई। जोदाल ने उसे अपनी खिलवत में तलब कर लिया, लेकिन ज़ुलारा का घराना भी इज़्ज़तदार था, और उन्होंने जोदाल से दरख्वास्त की कि उनकी इज़्ज़त महफूज रहने दी जाए। लेकिन जो लोग दरख्वास्त करने गए थे वो वापस ना आ सके। अलबत्ता उनके घोड़े, उनकी लाशें ज़रूर वापस ले आए थे। ज़ुलार इस वक्त वहाँ मौजूद ना था। लाशों को देखकर पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। ये ज़ुलारा का बाप और भाइयों की लाशें थी, लेकिन जोदाल ने उसी पर इक्तफा न की, और उसके हरकारे ज़ुलारा के घर पहुँचे और ज़ुलारा की माँ और घर के दूसरे लोगों को घर में कैद करके आग लगा दी। बस्ती की दहशत ज़दा लोगों ने अपने घरों से कोनों में दुबक कर ज़ुलारा के घर वालों की दिलदोज़ चीखें सुनी थी और कानों पर हाथ रख लिए थे। किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। और जब जोदाल के अहकामात पूरे हो गए और जोदाल के हरकारे वापस चले गए, तो सहमे हुए लोग घरों से निकले। उनके दिल खौफ से लर्ज़ रहे थे। जले हुए मकान से उन्होंने बेमुश्किल तमाम खस्ता हाल लाशें निकालीं और ज़ुलारा का इंतज़ार किए बगैर उन्हें दफन कर दिया। तब ज़ुलारा बस्ती में वापस आया। भरा घर छोड़ कर गया था, जला हुआ खंडर मिला। हाँ, बस्ती के एक कोने में मनो मट्टी के नीचे उसका घराना आबाद हो गया था। देखने वालों ने देखा कि ज़ुलारा की आंखों ने एक भी आंसू नहीं बहाया, अलबत्ता उसकी आंखों से निकलने वाले शोले साफ देखे गए थे। ज़ुलारा को पूरी दास्तान सुनाई गई। उसने सब्र सुकून से सुनी, एक लफ्ज़ भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकला। और उस रात जब तक बस्ती का आखिरी आदमी जागता रहा, उसने ज़ुलारा को उन कब्रों के नज़दीक एक सतून की तरह खड़े देखा। उसका दिल चाहा कि ज़ुलारा को तसल्ली दे और उसके करीब पहुंच जाए। उसने डरते डरते ज़ुलारा के शाने पर हाथ रखा। कब तक खड़े रहोगे ज़ुलारा, आओ मेरे साथ चलो। तब ज़ुलारा ने उसे शोला बार आंखों से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम सब सहमे हुए क्यों हो बाबा? हम सब उस हशर के मुंतज़िर हैं ज़ुलारा। काश कोई वबा फैल जाए और हमारी बेटियां हलाक हो जाएं। काश खजाना की औरतें लड़कियां पैदा करना बंद कर दें। वबा ज़रूर फैलेगी बाबा, मैं पेशगोई करता हूँ, लेकिन कौन हलाक होगा ये वक्त बताएगा, ज़ुलारा ने आहिस्ता से कहा और फिर सुस्त कदमों से एक तरफ चल पड़ा।
बूढ़े गवाले ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ ना निकल सकी और फिर दुलारा बस्ती से गायब हो गया। तकरीबन 1 माह गुजर गया और फिर एक दिन खैजाना में कोहराम मच गया। जोदाल के 2 जवान बेटे और एक बेटी बग्गी में सैर करने गए थे। कोचवान उनके साथ गया था, लेकिन कोचवान वापस आया तो खून में नहाया हुआ था और बग्गी के अंदर जोदाल के दोनों बेटियों और बेटे की सरबरीदा लाश मौजूद थी। कोचवान ने बताया कि उन्हें एक कवि हिकल आदमी ने कत्ल किया है। उसने कोचवान को इसलिए जिंदा रहने दिया कि वो जोदाल को बता दे कि उनका कातिल जोलारा है, और उसने ये भी कहा कि अगर जोदाल से इंतकाम लेने की कोशिश की तो उसे इबरतनाक हालात से दो चार होना पड़ेगा। और फिर क़यामत आ गई। जोदाल के आदमी जोलारा को तलाश करते फिर रहे थे। उन्होंने जोलारा की तलाश में बड़े बड़े मजालम किए, लेकिन कोई जोलारा के बारे में कुछ नहीं जानता था। बहुत से लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन जोलारा ने चैलेंज कर दिया था कि एक आदमी के खून का बदला 10 आदमियों से लिया जाएगा। जोदाल के बड़े बड़े सूरमा जोलारा के हाथों मारे गए और रियासत में कोहराम मच गया। यहाँ तक कि बात आला हजरत तक पहुँच गई। आला हजरत को जोदाल ने तलब कर लिया। जोदाल ने उन्होंने जोलारा का अहवाल दरियाफ़त किया तो उसने झूठ सच बताया। 2 जवान बेटों और बेटी के गम ने जोदाल को नीम दीवाना कर दिया था। बहरहाल आला हजरत ने हुक्म दिया कि जोलारा को तंद ही तलाश किया जाए, लेकिन उसकी तलाश में किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ताकि गारतगरी का ये सिलसिला बंद हो। उस हुक्म की सख्ती से पाबंदी की गई। चुनाचा नतीजा तरखवा निकला। जोलारा को दूसरों से कोई बुग़्ज़ नहीं था। उसने उसके बाद कोई दूसरा कत्ल नहीं किया। अलबत्ता जोदाल उसके दस्त से बर्द से बचा हुआ नहीं था। वो जोदाल के अहले ख़ानदान को तलाश करके कत्ल कर रहा था, और जोदाल के ख़ानदान वाले अब जोदाल से कोई रिश्ता बनाते हुए खौफज़दा थे। लेकिन जोलारा की मालूमात बहुत उम्दा थी। वो उन्हें तलाश कर ही लेता था। यहाँ तक कि एक रात जोलारा जोदाल के महल में दाखिल हुआ और उसके ख़ानदान के बाकी अफराद को भी कत्ल कर दिया। अब जोदाल के हवास उसका साथ छोड़ गए थे। वो दीवाना होकर सड़कों पर निकल आया और एक सुबह खजाना वालों ने शहर पनाह के दरवाजे पर जोदाल का सर उसके कंधों से 20 फुट बुलंदी पर लटका हुआ पाया और उसका धड़ सर से अलहदा करके नीचे खड़ा कर दिया गया था। यूं जोदाल का ख़ानदान ख़त्म हो गया। जोलारा ने इस इंतकाम के चक्कर में 120 इंसानों को कत्ल किया था। आला हजरत उसकी गिरफ्तारी के लिए सख्त परेशान थे। फिर एक चमकदार दिन में जबकि दरबार भरा हुआ था, जोलारा आला हजरत के सामने पहुंच गया और उसने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हुए कहा, आला हजरत, जोलारा आपका गुलाम है, आपसे कोई शिकायत नहीं है। जोदाल ने मेरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था। मैंने देवताओं से उस वक्त तक की ज़िंदगी मांगी थी जब तक मैं जोदाल के ख़ानदान के आखिरी फ़र्द को भी ख़त्म ना कर दूं। आला हजरत, मैं देवताओं से बदअहदी नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरी मुराद पूरी कर दी और अब मैं ये ज़िंदगी आपके हवाले करने आया हूँ। आला हजरत, इंसान को बदअहद नहीं होना चाहिए। अगर मैं ज़िंदा रहता और कहीं रोपोश हो जाता तो मुमकिन है कि मेरे दिल में फिर कोई आरज़ू उभरती और ये देवताओं के हजूर जुर्म होता। मेरी दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द मेरी मौत का परवाना जारी किया जाए। गो आला हजरत जोलारा से सख्त नफरत करते थे और उसकी मौत के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जोलारा के अंदाज से वे बहुत मुतासर हुए और उन्होंने उसकी कहानी मालूम की और उसकी तस्दीक दूसरे लोगों से की। तब उन्होंने उस 120 आदमियों के कातिल से हमदर्दी फरमाई, लेकिन वह उसे माफ़ नहीं कर सकते थे। चुनाचा उसके लिए गार्जिया तजवीज़ हुआ और उसको गार्जिया भेज दिया गया, और वो गार्जिया के कैद खाने का पहला शरीफ कैदी है जो खामोशी से हर हुक्म की तामील करता है और किसी मुहाफ़िज़ को उसे एक भी कौड़ा मारने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन उसकी बदकिस्मती बिल आकर उसने अपनी शामत बुला ही ली। खाजाल खामोश हो गया। शबाला के दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। शबाला के हुस्न से उसकी बेइतनाई, जैसे वो कोई ख़ास लड़की ही ना हो, ये बात शबाला के देन को चुभ रही थी। क्या उसके बावजूद उसे सज़ा दी जाएगी? शहराना ने पूछा। हाँ, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो सज़ा का मुस्तहिक करार पा चुका है, खाजाल ने कहा और दस्तरख्वान से उठ गया। अब किसी की मजाल न थी कि उसे रोक सके। कौन ख्वार खाजाल भला अपनी बेटी की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
गुजरी हुई कहानियाँ उसके लिए क्या हकीकत रखती थीं। नन्हे शहजाल का दिल बहलाने के लिए बहुत से कैदियों की पुश्त खून से सुर्ख की जा चुकी थी। शहजाल खुशी से तालियां बजा रहा था। कैदियों की चीखें कराहें उसे बहुत दिलचस्प मालूम हो रही थी। खौनख्वार बाप का खौनख्वार बेटा जिसे ये दरिंदगी विरसे में मिली थी, वैसी सिफ्त तो शबाला भी थी, लेकिन शहराना की फितरत बिल्कुल जुदा थी। आज भी वो कैद खाना देखने नहीं आई थी। उसे उस खौफनाक माहौल से नफरत थी। अलबत्ता खाजाल शबाला को साथ लेकर आया था। बेटी के सामने सुरखरू होना था और फिर जुलारा को तलब कर लिया गया। जुलारा उसी लापरवाह अंदाज में उनके सामने पहुंच गया और उसका बालों से भरा हुआ चौड़ा सीना तना हुआ था। क्या यह दुरुस्त है जुलारा कि तुमने शबाला से बदतमीजी की थी? खाजाल ने गड्ढदार आवाज में कहा और जवाब में जुलारा ने अजीब सी निगाहों से शबाला की तरफ देखा। शबाला उसकी निगाहों की ताब न ला सकी थी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी खाजाल। खातून शबाला खुद मेरे नज़दीक रुकी थी और फिर उन्होंने मुझे बदतमीज़ कहा, जबकि मैंने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की थी। फिर उन्होंने कहा कि वह मेरी खाल उतरवा देंगी, तो मैंने जवाब दिया कि आखिर खाजाल की बेटी होना क्या मतलब था इस बात का। खाजाल के तेवर खराब हो गए। मुझे मतलब बताने की ज़रूरत कब रहती है खाजाल? कैद खाने में इंसानों के साथ जो दरिंदगी की जाती है उसके पूरे जिम्मेदार तुम हो। क्या तुम्हें दरिंदा कहना, दरिंदा समझना गलत है? जुलारा ने साफ लहजे में कहा। गुस्ताख, बेअदब, बदतमीज़, खाजाल गुस्से से चीखा। जो दिल चाहे कह लो खाजाल, मैंने हकीकत कह दी है। मैं तुम्हारी दरिंदगी को नापसंदीदगी की निगाह से देखता हूँ, उससे नफरत करता हूँ। बेशक ये कैद खाना है, यहाँ खतरनाक मुजरम आते हैं, लेकिन वो इंसान ही हैं और उनके साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। ज़ुलार, तेरा अहद गुजर गया है। ठीक है, तू किसी ज़माने में ज़ोर आवर था, खतरनाक था। तूने बेशुमार इंसानों को कत्ल किया, लेकिन वो खुले मैदान थे। यहाँ खाजाल की हुकूमत है और खाजाल अच्छों का दिमाग दुरुस्त करना जानता है। खाजाल ने कहा, मेरी कोई खता नहीं है खाजाल, मैंने कुछ नहीं किया है। तेरी लड़की बिला वजह मेरी दुश्मन हो गई है। ज़ुलारा ने नरमी से कहा, तूने जो कुछ मेरे सामने कहा है उससे ज़्यादा क्या कहना चाहता है? मैं तेरे जिस्म से खाल उतरवा दूंगा। मुमकिन है मैं मार बर्दाश्त न कर सकूं खाजाल। मुमकिन है कि सोया हुआ दर्द जाग उठे, मुझे देवताओं से बदअहदी करने से रोक दे। मेरी कोई खता नहीं है। ज़ुलारा ने दर्दनाक आवाज़ में कहा। बाबा, शबाला के मुंह से निकल गया। इसने खाजाल के बाजू पर हाथ रखकर शायद उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वैशी खाजाल समझा कि वह उसे जल्द सज़ा देने का मुतालबा कर रही है। चुनाचा उसने चीख कर गर्जदार आवाज़ में जलादों को आवाज़ें दी और खौनख्वार लहजे में बोला, इसे शिकंजे में कस दो, इतने कौड़े लगाओ कि खाल बदन का साथ छोड़ दे। और सुनो, ये कौड़े इसको रोज़ाना मारे जाएंगे। अगर इसका एक एक ज़ख्म नासूर ना बन सका तो ऐसे ज़ख्म तुम्हारे जिस्मों पर लगाए जाएंगे कि एक भी ज़ख्म खुश्क ना होने पाए। जलादों ने गर्दन झुका दी और फिर ज़ुलारा को शिकंजे की तरफ हाँक कर ले गए। शबाला का रंग जर्द हो गया था। अगर वो ज़ुलारा की कहानी ना सुन चुकी होती तो उस सज़ा पर मसरूर होती, लेकिन ज़ुलारा की कहानी बहुत दर्दनाक थी। उसे सुनने के बाद शबाला को महसूस हुआ था कि बद्दे नकूश वाला ज़ुलारा तो पहले ही काफ़ी मजलूम है। गो 120 आदमियों का कातिल मजलूम नहीं हो सकता, लेकिन ज़ुलारा के बदन में इंतकाम खोल रहा था। जब वो इंतकाम सर्द हो गया तो उसने और कोई ख्वाहिश नहीं की। अगर वो चाहता तो दूर की बस्तियों में निकल जाता, कोई नई ज़िंदगी का आगाज़ कर देता, लेकिन वो तो दुनिया ही तर्क कर चुका था। उस मुर्दा इंसान को अजियत देना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। अब अफसोस के अलावा और क्या हाथ आ सकता था। थोड़े फासले पर ज़ुलारा को शिकंजे में कसा जा रहा था। वो खामोश था और उसके होंठ भींचे हुए थे। आंखों में एक सपाट सी कफियत थी। उसकी पुश्त नंगी कर दी गई थी। नन्हे शहजाद ने जब नए मुर्ग को फंसते हुए देखा तो उसकी तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए वो शबाला के करीब से गुजरा। अरे शबाला, आओ, देखो नया मुर्गा फंसा है, आओ ना, तुम भी शराना की तरह बदज़ौक़ होती जा रही हो। उसने अचानक शबाला का हाथ पकड़ा और इससे कबल कि वो संभलती, शहजादा उसे खींचता हुआ ज़ुलारा के सामने ले गया। ज़ुलारा के हाथ पांव मजबूती से कस दिए गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही सुकून था।
اس کے چہرے پر ویسا ہی ٹھہراؤ تھا۔ تب دیو پیکر محافظ کا پہلا کوڑا اس کی پشت پر پڑا۔ اس نے تکلیف سے ہونٹ سکوڑے اور پھر اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اب محافظوں کے نہ رکنے والے ہاتھ چل رہے تھے اور زلارہ کی صاف پشت پر سرخیں لکیریں ابھرنے لگی تھی، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے تھے۔ بس آنکھیں زمین کی طرف نہیں تھی، وہ آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ لال دھاریوں نے کمر کراس کی اور کھال ادھرنے لگی۔ خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے۔ شہزال کو قیدی کے چیخنے اور بلبلانے کا انتظار تھا، اور جب اس کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی تو وہ بور ہونے لگا۔ کیسا آدمی ہے، نہ چیخ رہا ہے نہ تڑپ رہا ہے، عجیب ہے، وہ بڑبڑانے لگا۔ لیکن شبالہ کی حالت درست نہ تھی۔ قیدی کے استقلال نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ تب آہستہ آہستہ قیدی کی گردن جھکنے لگی اور پھر اس کا سر سینے پر لٹک گیا۔ آسمان کی طرف نگران آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ شبالہ چلی گئی تھی، لیکن زلارہ کو مستقل عذاب میں گرفتار کر گئی۔ بلا خازال کا حکم تھا، اور وہ بھی اتنا سخت کہ اگر کسی محافظ کے دل میں ہمدردی کی کوئی رمق جاگ بھی جاتی تو اسے خود اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی۔ زلارہ کی پشت زخموں سے چور چور تھی اور روزانہ اس پر نئے زخم بنتے تھے۔ پرانے زخم ہرے ہوتے تھے اور ان میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔